Hi everyone, this is Dr. Mamta Java, microbiology faculty at Dr. Tutorials, and I'm extremely happy and proud today to introduce to all of you Dr. Kanupriya Kundu, who has successfully smashed the recently held INICET November 2021 exam with a fantastic rank of 15. Welcome, Dr. Kanupriya Kundu, to this interview, and thank you so much for sparing your precious time for us. Thank you so much, ma'am, for calling me here or getting this all. First and foremost, heartiest congratulations to you. It's a brilliant rank. Thank you, ma'am. And I'm sure you must have worked really, really hard to achieve your goal. So, सबसे पहला question तो cliche type ही है, but I would want to know how are you feeling right now? कैसे लग रहा है? Did you expect to do so well? What emotions are you going through right now? After the exam, the AIMS rank are always very unpredictable. The last time also, I and my sister were, matlab we used to study together, and our preparation was almost same. And then she got a all India rank of 4, and I got 162. So that's why I always thought that top 200 are almost like they have the same knowledge. And what is more important is your mindset at the time of exam, in the day of exam, how how you train your mind in the actually what happens in the last 1 month is mainly knowledge. Top 200 people have nearly same knowledge. It really doesn't matter, but whatever matters is like in last 1 month you are able to train your mind. You are able to train whether you how will you be performing in the on the day of exam, because even if you have knowledge and you have panic because of any reason, then everything will go wrong. So you cannot perform well if you are able to perform that well. That's why it's first of all, it is mind is the game changer. Obviously knowledge is also important, but not like कि अगर knowledge ही है और कभी ऐसा mindset ही नहीं है एग्जाम में बैठने का, तो फिर नहीं होगा. हाँ एग्जैक्टली. और उसके बाद अभी तो मुझे अच्छा लग ही रहा है, लेकिन हाँ अच्छा तो लग ही रहा है. वर्ड्स ही नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए. रियली हाँ, वो सिंकिंग वाला फेज कल था जब रिजल्ट आया. अभी ठीक है, अभी न्यूट्रल हो गया है. मतलब आई एम नॉट से आई एम दैट हैप्पी, आई एम नॉट दैट हैप्पी, बट ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल. लेकिन कल थोड़ा शुरू में थोड़ा था ऐसा, बाद में थोड़ा जॉयस लगा. अभी बस न्यूट्रल है, ऐसा है. आई रियली नेवर आफ्टर एग्जाम, आई रियली नेवर केयर फॉर कि what will be my result, मतलब whether I will get the seat of my choice or not. It is always like कि I have given my best. Exactly, yeah, and actually I always feel कि I have given my best in the exam. मतलब देख लेंगे इसके बाद जो रैंक आएगी. या मतलब वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना. हमने तो जो जितना एग्जाम 14 तक जितना था मैंने किया, एग्जाम डे तक 12 o'clock तक. उसके बाद तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. सबमिट हो गए आंसर्स, ठीक है. तो उसके बाद आई नेवर रादर इट्स लाइक कि मैं रिव्यू भी नहीं करती कभी. मैं कभी क्वेश्चन रिव्यू नहीं करती. रिव्यू मैं तब करती हूँ जब मतलब रिजल्ट आ गया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया. देन आई नो एग्जैक्टली, आई वांट टू नो कि वेयर आई वाज लैगिंग, इन विच सब्जेक्ट, इन विच टॉपिक्स, या व्हाट वाज द प्रॉब्लम. सो आफ्टर दैट आई रिव्यू, बिकॉज इफ आई रिव्यू देन इट सो मच स्ट्रेस ना. पता नहीं. लेकिन उसके बाद रिव्यू करना जरूरी है ऑब्वियसली. अगर रैंक जैसे लास्ट गलतियों से सीखना. एग्जैक्टली. उसके बाद क्योंकि जैसे लास्ट टाइम आई गॉट रैंक 162, सो आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई सॉ कि मतलब व्हाट वाज माय मिस्टेक्स, so that I should not repeat them in my next exam. So ऐसा. So you got 162 rank in the May wala INICET. Yeah, and from 162 rank in the last INICET to rank 15, guys, in this INICET. So 162 rank, of course, is also extremely good. But I think you wanted to, you were aiming for a specific branch only कि मुझे इस ये वाली branch इस पे मिलेगी, तो that's why you decided. I was always मतलब wanted to get pediatrics, and so I was getting in peripheral AIMS, but no, I was like कि नहीं, AIMS Delhi चाहिए, तो AIMS Delhi में pediatrics, तो इसलिए that's why I came up with all this कि next exam देना है और करना ही है, तो ऐसा. तो बेसिकली गिव अप नहीं करना है, परसिवियर करना है. जो सपना देखा है उस तक पहुंचना ही है. एग्जैक्टली. एक्सीलेंट. तो अभी मतलब बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि हाँ ब्रांच कॉम्प्रोमाइज. ऑल्दो आई वाज गेटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिल रहा था कुछ. आई वाज गेटिंग क्लिनिकल ब्रांचेस एज वेल, बट नो कि लेना है तो पीडियाट्रिक्स ही लेना है. लेकिन मतलब मेरा तो यही पॉइंट है
हाँ, ये भी है कि काव्या भी एम्स में थी और ये भी है वाओ। कि हाँ, एम्स दिल्ली में लेना है। तो ये था ही। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़, और ठीक है, बहुत वो कि बहुत सारे मान लो ऐसा भी होता है कि बहुत अटेम्प्ट्स हुए, तो फाइनली यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ, अब तो कुछ ले ही लेते हैं। वो बात हम्म। अलग होती है, वो एक अलग फीलिंग है, लेकिन मेरे साथ वो नहीं था। लेकिन आइडियली तो द पॉइंट इज़ कि हाँ, ब्रांच तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बहुत करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, तो क्योंकि वो अच्छा, तो लाइफ टाइम का है। बिल्कुल। तो यहाँ यहाँ पे एक मैं बहुत ही हाँ। ऑफन, मतलब बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कई बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा मुझे अपनी पसंद की ब्रांच तो नहीं मिल रही लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, या हुँ। फिर मुझे पसंद की ब्रांच तो मिल रही है लेकिन कॉलेज सो है, या फिर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एक और आई थिंक मोस्ट हाँ। स्टूडेंट्स इस दुविधा में भी रहते हैं कि हुँ। इतने अटेम्प्ट हो गए, उतने हो गए। हुँ। तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे एस्पिरेंट से, क्या अब देखो। डिसाइडिंग फैक्टर्स होने चाहिए? अब ब्रांच है तो ब्रांच और कॉलेज पहले ये बात करेंगे कि ब्रांच तो ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस है, क्योंकि कॉलेज में आपको 3 साल के लिए ही रहना है कि हाँ 3 इयर्स में यू विल बी आउट ऑफ दैट कॉलेज विद द डिग्री इन दैट ब्रांच और वो सब। लेकिन अब कॉलेज पहले देख लिया तो उसके बाद कॉलेज तो बस वही 3 साल के लिए रहेगा, लेकिन डिग्री तो जो ब्रांच आपने ली है तो वो हम्म। ब्रांच तो पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी ना। जैसे वही आई वाज बिल्कुल। गेटिंग branches like ENT, psychiatry, ophthalm in that mid-year wala AIIMS in AIIMS Delhi only. But हम्म। no, I was like ये branches AIIMS Delhi will be 3 years के लिए, and then I लेकिन जो अगर मैं ophthalm ले लूँ तो वो लाइफ टाइम के लिए। लेकिन I never enjoyed ophthalm. I don't know the reason, but I never enjoyed it. So that's why I decided कि no, this is very important. मतलब 3 years versus your whole lifetime. तो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली यू विल चूज योर लाइफ टाइम ना, कि लाइफ टाइम के लिए कोई ब्रांच लेनी है। ऑब्वियसली जैसे ऐसा भी होता है कि चलो मैंने तो नेक्स्ट टाइम दिया, जैसे इफ आई मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम कि इन नीट आई गॉट अ रैंक ऑफ 285, सो दैट्स व्हाई आई फ्रॉम देयर ओनली फ्रॉम मतलब ग्रेट। देयर एज वेल आई वाज मतलब ड्रीमिंग फॉर पीडियाट्रिक्स ओनली फ्रॉम कलावती सरन, जो मेरा तो हमेशा से आई एम फ्रॉम हार्डिंग। हाँ, तो आई एम फ्रॉम हार्डिंग, सो आई वांट कलावती सरन, मुझे वही लेना था और कुछ लेना ही नहीं था ऐसा। तो वही है कि ब्रांच मुझे ऐसा हमेशा था, ब्रांच कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, कॉलेज चाहे वो एम्स दिल्ली हो या कलावती सरन, लेकिन ब्रांच हमेशा लेनी वही है। तो ऐसा था हमेशा कि यही करना है। तो इसीलिए ओके। एक पॉइंट ये पूछा था आपने कि अब बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं कि हम्म। क्या लेना है। अब ये तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम डिसाइड है कैसे शायद। करो? हाँ, डिसाइड कैसे करें। अब देखो 2 फैक्टर्स हैं कि कभी-कभी होता है फाइनेंशियल वाला भी नहीं होता है कि हाँ, कि देखो पेरेंट्स इतने, जैसे मेरे पेरेंट्स तो वर वेरी सपोर्टिव और फाइनेंशियल का भी कुछ था ही नहीं, इश्यू ही नहीं था। लेकिन हर मतलब फैमिली में सेम सिनेरियो सिचुएशंस डिफरेंट नहीं होता है। होती है। एग्ज़ैक्टली। तो दे आर वेरी डिफरेंट, सो यू नीड टू बैलेंस कि फाइनेंशियल अगर चाहिए तो कुछ कहीं या तो ऐसे करो कि कहीं जॉइन करो समथिंग, और 2 ऑप्शंस उसमें है अच्छा देखिए। करो। अब 2 ऑप्शंस है, या तो आप कोई ऐसी ब्रांच ले ही लो कि ठीक है, अगर आपको नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं कर पाओगे तो ब्रांच ले लो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आइडियली होनी चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप बीच में कहीं जॉइन करो, कहीं भी मतलब कुछ जेआरशिप, या ये तो हर जगह होता है ये जेआरशिप जॉइन करो, और साथ-साथ प्रिपरेशन। अब ये भी दिक्कत है कि जेआरशिप जॉइन कर लिया, कुछ भी ऐसा जॉइन किया, उसके बाद प्रिपरेशन साथ में डिफिकल्ट होगी, तो ये तो पॉइंट होगा ही। तो वो तो बैलेंस, वो तो हर अब मैं हर इंडिविजुअल का तो नहीं बता सकती, तो मैं ओवरऑल हाँ। एज़ अ बोलती हूँ कि हाँ, वो ये बहुत मतलब क्रूशियल डिसीजंस हैं कि हाँ, क्योंकि लाइफ टाइम का होता है। अगर चाहिए कि हाँ, ब्रांच अच्छी चाहिए, और कॉलेज तो सेकंड चीज़ होता है, लेकिन ब्रांच अच्छी एग्जैक्टली। चाहिए। कॉलेज तो हमेशा सेकंड पे आएगा, ब्रांच हमेशा फर्स्ट पे। तो हमेशा लेकिन फर्स्ट। हाँ, तो अगर यही है कि ब्रांच ही लेनी है, तो मेरा तो यही एडवाइस होता है कि यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन कि हाँ, करना ही है। वो चाहे थोड़ा, अब देखो ऐसा होता है कि योर गोल माइट बी फार अवे, लेकिन वो मिल जाएगा अगर आप काम करोगे तो। मेबी वो थोड़ा दूर हो। मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ, मिड ईयर से नहीं हुआ, लेकिन आई वाज़ लाइक कि हाँ, कोई बात नहीं, मिड ईयर से नहीं हुआ तो नीट है, नीट के बाद नवंबर आना है। आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक, सो योर गोल माइट बी फार अवे, बट यू डू नॉट हैव टू स्टॉप वर्किंग, मतलब फॉर इट, एग्जैक्टली। ऐसा होना चाहिए। सो और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हाँ, होपफुल एग्ज़ैक्टली, रहना चाहिए। होप तो है ही, होप तो होनी चाहिए ऐसा। Wonderful. So, guys, as she rightly said, branch should always be given an edge over the college. क्योंकि as she rightly said कि कॉलेज में आपको 3 साल ही रहना है, एंड पढ़ने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, है ना? एग्ज़ैक्टली।
तो कॉलेज ठीक है, if you are going to a premier institute I think plays role to an extent only. I mean, exactly. Of course, due respect to all the institutes, institute का रोल भी होता है, लेकिन I think student पे खुद पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितना सीखना चाहते हो, कितना पढ़ पाते हो. पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है ना. पढ़ना, डिग्री के बाद भी इंसान आगे चाहे तो कितना कुछ अपने आप को एनरिच कर सकता है, यू नो, चीजें पढ़ के. ओके. So now coming to your strategy for preparation. अभी घर में कोई डॉक्टर है? अच्छा पहले ये बताओ. नहीं, कोई नहीं है. तो एक जो होता है ना कि एक अवेयरनेस की, अच्छा एमबीबीएस करनी होती है, फिर उसके बाद पीजी नाम की भी कोई चीज होती है और कोचिंग लेनी होती है वगैरह वगैरह. तो वो अवेयरनेस, वो एक जिसे कहते हैं ना एक डायरेक्शन की, मुझे कब स्टार्ट करना है. 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एमसीक्यू आते हैं, मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे, बाय द वे एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कॉलेज में कुछ चल रहा है और अभी मेरा टेस्ट इस चीज का है, तो इस पे प्लीज एनलाइटन दी एस्पिरेंट्स कैसे आपने मैनेज किया, कब पढ़ना शुरू. Actually, I started my coaching from second year only, as ममता मैम तो नो ना कि मैंने second year से ही उनके माइक्रो के नोट्स वो second year से मेरे पास है कि, और मतलब वो तो मेरा तो ऐसा था क्लास में माइक्रो में hardly I got 1 or 2 incorrect or rather 100% correct. Micro was like that only कि मुझे नहीं पता मैम के नोट्स अब तक है तो बहुत अच्छे है. तो वो तो मैं बोल रही हूँ सामने कि हाँ मैम के तो माइक्रो के नोट्स आर दी बेस्ट, ऐसा है. उसके बाद फिर अब देखो मैंने तो मतलब आई स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर ओनली. बट सेकेंड ईयर में इतना नहीं होता है. अब आपने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. वो भी अब सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद फिर अब कॉलेज में क्या चल रहा है, और अब कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए तो थोड़ा न्यू होता है, कुछ नहीं समझ आता, सब्जेक्ट्स भी थोड़े बोरिंग होते हैं. थोड़े बोरिंग मतलब मैं इतना वो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ होते हैं, कोई कुछ भी कहे लेकिन होते तो है. हाँ तो लेकिन हमेशा ऐसा रखना है कॉलेज में, हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो होती है वो पढ़नी है. ऐसा नहीं कि बहुत लोग ऐसा करते हैं पूरे साल नहीं पढ़ाई की, या पूरे साल जैसे सेकेंड ईयर में लैब वर्क होता है, माइक्रो में तो बहुत ज्यादा वहीं सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, रादर रोज ही जाना होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो वो बंक नहीं करना है, वो अटेंड करना है. जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है वो पढ़नी ही पढ़नी है. अब कुछ लोग ऐसा करते हैं पूरे साल नहीं पढ़ाई की, एंड में बस आके कोई गाइड बुक्स या वो सब, तो वो सब पढ़ते हैं. अब पास तो हो जाते हो प्रॉफ में, वो तो हर कोई पास होता है, उसका क्या कंसेप्ट है. लेकिन जो अभी के लिए जो कंसेप्ट डेवलप होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं. और वो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो कंसेप्ट आपके डेवलप होंगे जब आप फाइनली कोचिंग के जो नोट्स पढ़ोगे उनसे, नहीं. ऐसा नहीं होता कि कोचिंग के नोट्स डायरेक्टली पढ़ लिए कंसेप्ट डेवलप, ऑब्वियसली दे विल इंप्रूव. बट अगर आपने पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, उसके बाद आपने कोचिंग वाले नोट्स पढ़े हैं, तो वो ऑब्वियसली बेटर होगा एज कम्पेयर टू आपने एमबीबीएस टाइम में कोई पढ़ाई नहीं की, उसके बाद आपने डायरेक्टली कोचिंग में नोट्स, तो ऑब्वियसली ग्रास्प तो कर लोगे लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट थोड़ा सा. तो इसलिए बेटर ये है कि एमबीबीएस टाइम में थोड़ा, मैं नहीं कह रही कि सारे काम कर रहे होते हैं, मजे भी कर रहे होते हैं, सब कर रहा होता है, बोल तो मैंने इतने नहीं किए, मैं पर्सनली बता रही हूँ. लेकिन पढ़ना बहुत अच्छे से होता है, मतलब जितना टाइम पढ़ रहे हो, मैं नहीं मतलब पूरा टाइम नहीं, लेकिन जितना टाइम पढ़ रहे हो बाय हार्ट कि पढ़ना ही है. मतलब अगर अभी मुझे पढ़ना है तो हाँ आई शुड गिव माई एवरीथिंग टू दिस टाइम, कि मैं अगर 1 घंटे के लिए पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो ऐसे पढ़ना है. उसके बाद फिर अब एमबीबीएस टाइम में ये दिक्कत होती है कि अब सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पहले माइक्रो एंड पैथ एंड ऑल वो सब आएंगे सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में थोड़े माइनर सब्जेक्ट, मेजर जो सब्जेक्ट्स है जिसमें वो 4 सब्जेक्ट्स और लॉन्ग विद कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स वो आएंगे फाइनल ईयर में. मेडिसिन में बहुत सारी चीजें माइक्रो की होती है, तो वो सब इन्फेक्शियस डिजीज का बहुत होता है. रादर मैंने तो ममता मैम के इन्फेक्शियस डिजीज के वीडियोस बहुत देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच. तो ऐसा, तो अब ये बात है कि हम अब कॉलेज में ऐसा होता है कि जब हम मेडिसिन में आते हैं तो हम माइक्रो भूल चुके होते हैं, हमें नहीं याद रहती. और वो इतना कुछ, कोई इतना किसी का माइंड ऐसा नहीं होता जिसको सब याद रहते हैं, नहीं किसी का भी नहीं होता, सब भूलते हैं, तो भूल चुके होते हैं. अब कॉलेज में तो इतना टाइम नहीं मिलता, वो सिर्फ 9-10 मंथ्स होते हैं आपके पास. नवंबर में तो एग्जाम ही हो जाता है, तो सिर्फ 10 मंथ्स होते हैं पढ़ने के लिए. तो कॉलेज में तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कोरिलेट कर पाओ. लेकिन जब आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, देन आइडली आई यूज टू डू दिस कि आई यूज टू ऑलवेज इंटीग्रेट द सब्जेक्ट. जैसे अगर जैसे सम इन्फेक्शंस आर कॉमन, जैसे स्किन इन्फेक्शंस है,
सुपरफिशियल माइकोसिस है तो वो डर्मा में और माइक्रो में हमेशा साथ में होता था। तो आई ऑलवेज यूज टू स्टडी दैट, जैसे साथ में जो जितनी भी सुपरफिशियल माइकोसिस या वायरल इन्फेक्शंस जो HSV एंड ऑल वो सब, तो वो साथ में तो इंटीग्रेटेड होता था। सेकेंडली बहुत सारे माइक्रो के मतलब जैसे प्रायोन डिजीजेस या बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो मेडिसिन में भी पढ़ते हैं हम, तो वो हमेशा साथ में इंटीग्रेट करके, क्योंकि अगर एक बार यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग ना, तो उसके बाद क्वेश्चन विल नेवर कम लाइक कि हाँ बस एक मेडिसिन का आ गया, नहीं। इट विल बी इंटीग्रेटिंग मेडिसिन माइक्रो की उसका डायग्नोसिस तक आप पहुंच पाओ। सेकेंडली दे विल आस्किंग द ड्रग, तो फार्मा भी पढ़ेंगे। एग्जैक्टली, देयर ट्रीटमेंट द ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा भी रहते हैं। और सेकेंडली यू गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ यू, बिकॉज फाइनली व्हाट विल यू बी मतलब डूइंग इन क्लिनिक्स कि यू विल हैव टू मतलब पेशेंट तो विल नॉट कम ना कि हाँ आई हैव दीज सिम्टम्स एंड सो आपके पास कोई ऐसी बुक तो नहीं है कि हाँ उसमें डायग्नोसिस लिखा है फिर ट्रीटमेंट लिखा है, नहीं, अलग अलग है सब। तो अगर अभी से आप ऐसे पढ़ोगे तो क्लिनिशियंस एज अ मतलब इन फ्यूचर यू विल बी वेरी गुड क्लिनिशियंस, बिकॉज फाइनली तो पेशेंट को देख के आपको डायग्नोसिस बनाना है और उसको ट्रीटमेंट देना है, तो सब है। तो इसीलिए और अब ये भी है तो कॉन्फिडेंस भी गेन होता है कि हाँ आपको होता है, और आप फाइनली जब पेशेंट्स देखोगे तो यू विल बी वेरी गुड। एंड सेकेंडली टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। जैसे अभी मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीजें ओवरलैप भी करती है नोट्स में, माइक्रो के नोट्स में वो चीज होती है, मेडिसिन के नोट्स में भी होती है। कुछ ड्रग हमें मेडिसिन में लिखवाई होती है, कुछ ड्रग हमें फार्मा में लिखवाई होती है, तो बहुत सारे ओवरलैप। तो अगर आज आपने मान लो फार्मा पढ़ी, 10 डेज बाद आप उसकी मेडिसिन पढ़ रहे हो, तो फार्मा का आप ऑलमोस्ट मतलब मैं तो भूल जाती थी और सब भूल जाते हैं, ऐसा तो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है कि उसे सभी याद रहेगा, नहीं, तो भूल जाते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपने आज फार्मा पढ़ी, 10 दिन बाद मेडिसिन पढ़ी, तो आप फार्मा की चीजें वो भूल चुके होते। तो मेरे माइंड में तो जब मैं पहले इंटीग्रेट मतलब आई विल नॉट से इंटीग्रेट, बट मैं पहले ऐसे अगर जब साथ में टॉपिक्स नहीं पढ़ती थी तब आई यूज टू थिंक कि मेरा अब मैं मेडिसिन में जब पढ़ रही हूँ तो फार्मा का मैं जो मेरा माइंड हमेशा वही रहता कि फार्मा में क्या लिखा था, मैं नोट्स में वो क्या लिखा हो, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था कि मैं अब उस टाइम तो देन आई रियलाइज कि आई शुड डू लाइक कि मुझे आज अगर जैसे जैसे फार्मा से डायबिटीज है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, और मेडिसिन से भी डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। और इन डे टू डे भी कि हमारी फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे डायबिटीज तो इंडिया में है कॉमन है। एग्जैक्टली तो इसलिए तो अब मैंने आज डायबिटीज पढ़ा मेडिसिन से, उसका सारा डीके और वो सब पढ़ा, ट्रीटमेंट वो सब पढ़ा। अब प्रॉपर ड्रग्स के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स वो सब तो मेडिसिन में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो सब फार्मा में पढ़ाएंगे, तो एक ही साथ पढ़ना है वो। जैसे आज आपने डायबिटीज पढ़ा तो ऐसे पूरी एंडोक्रिनोलॉजी का एग्जाम्पल दे दो, तो पूरी एंडो आप पढ़ रहे हो मेडिसिन से, तो फार्मा में भी एंडो पूरी पढ़ाई होगी, तो साथ में ही पढ़ना है वही टॉपिक। जैसे क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट है तो उसके साथ ही पढ़ना है। तो ऐसे ही तो क्योंकि इससे टाइम भी बहुत कम लगता है, नेक्स्ट टाइम जब आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, लेटर ऑन आपको ट्रीटमेंट में ही बहुत आसानी होगी। तो अभी अभी लगती है चीजें कि हाँ बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे विल हेल्प अ लॉट कि आपको। हाँ तो ऐसे तो ये इंटीग्रेट है कि सब्जेक्ट्स को ही आपको साथ में ही पढ़ना है। मतलब अगर दो नोट्स, ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट कि आप दो नोट्स साथ में खोल के बैठोगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको हो जाएगा। शुरू वाले टाइम के रिवीजन में आपको लगेगा कि नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता था कि अगर मान लो आज मैंने मेडिसिन स्टार्ट की, तो अगर मैं फार्मा साथ में पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, कि मुझे लगता था क्या यार मेडिसिन ही खत्म नहीं होके दे रही है, क्या ही कर रही हूँ मैं बैठ के, मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अब उसके बाद ये अच्छी बात ये होती कि जब मुझे फार्मा पढ़ना होता था तो मुझे लगता कि हाँ ये टॉपिक मैंने पहले ही फिनिश कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता, कोई बात नहीं मैंने तब कर लिया, तो अब कम पढ़ना पड़ेगा फार्मा से जो टॉपिक्स बचते थे ऐसा। और ये एडवांटेजेस तो है ही कि इंटीग्रेट तो करना ही है, तो ये है कि साथ में पढ़ना है। उसके बाद मैम अभी आप ही पूछ लो, मैं फिर स्पेसिफिक बता दूंगी कैसे। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला कि एक तो इंटीग्रेटेड पढ़ोगे जितना उतना ज्यादा याद रहेगा। इन द एट द आउटसेट यू माइट फील कि you are perhaps wasting time or it is taking too long, but it is not a waste of time actually. लॉन्ग रन में वो हेल्प ही करेगा। बस किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट दिस एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर और एनी डैम एग्जाम इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल अ गेम ऑफ रिटेनिंग व्हाट यू हैव रेड। जब याद ही नहीं रहेंगी चीजें तो फिर फायदा ही नहीं है ना। और कनुप्रिया, ये तो बहुत अच्छी आपने इंसाइट दी। प्लस दी माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसे आप थ्योरी पढ़ते थे, अभी जैसे आपने यू वर टेलिंग मी कि आपने डॉक्टोरियल्स के कुछ टेस्ट दिए थे, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको इसके बारे में पता कैसे लगा एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद what with you know with the resources you used on our platform, उसके बारे में if you would want to enlighten us.
अभी तो आजकल तो यूट्यूब, फेसबुक और इन सब पे बहुत ज्यादा होता ही है, तो फेसबुक से ही पता चला था डॉक्टर ट्यूटोरियल्स के बारे में कि मॉक टेस्ट है और ये जितने भी टेस्ट है। एंड माय नीट वाज कमिंग, मतलब अभी तो मैंने आईएनआई इससे पहले तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है। लेकिन एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि इट रियली डजंट मैटर वेदर इट इज नीट और आईएनआई, प्रिपरेशन इज सेम। कि जब नीट के लिए प्रिपेयर किया तो ये सोच के नहीं करोगे कि हाँ नीट के लिए ही करना है तो आईएनआई नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। कि और अगर बिल्कुल। ऐसा आईएनआई के लिए कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप नीट में नहीं अच्छा कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि नीट के लिए ही पढ़ा या आईएनआई के लिए पढ़ा, तो ऐसा तो नीट से पहले आई गिव फ्यू एग्जाम्स। तो एक्चुअली देयर इज समथिंग लाइक कि अब एग्जाम्स देने चाहिए। अब एंड में ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने आज से पढ़ाई स्टार्ट की एंड आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर ही डायरेक्टली सैट इन द एग्जाम एंड उसने बस टॉप किया। नहीं, मैं नहीं कह रही कर नहीं सकते, लेकिन इट इज लाइक कि अब 3 आवर्स के लिए सिटिंग चाहिए, बहुत सारा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। पैनिक, कुछ लोग पैनिक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वही होता है कि इट टेक्स प्रैक्टिस। कि 3 आवर्स का एग्जाम, इट्स नॉट अ जोक ना कि 3 आवर्स के लिए बैठ एग्जैक्टली। के कि बस हो गया। नहीं, तो सब कुछ चाहिए होता है। माइंड सेट कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, रिकॉल हो पा रहा है नहीं आ रहा, वीक पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में। सो आई ऑलवेज यूज टू गिव द 3 आवर एग्जाम, मतलब मुझे बहुत पसंद थी। अब ओके। मुझे पता चला डॉक्टर ट्यूटोरियल्स के बारे में कि हाँ मॉक टेस्ट है और ये सब है, देन आई थिंक कि हाँ एग्जाम तो देना ही है। अब ये बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि यार रिवीजन खत्म नहीं हुई है, मैं भी सोचती थी पहले, लेकिन और सब सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के साथ, ये सबके साथ होता है जो चीजें होती है। ऐसा नहीं कि टॉपर्स के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। कि ऐसे सोचते हैं कि आज अभी एक रिवीजन खत्म नहीं हुई या दूसरी रिवीजन खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी आज कल मेरा एग्जाम है, तो दे यूजुअली स्किप एग्जाम्स। कि स्किप करेंगे, जब मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद नहीं। अब उसके बाद क्या, आज आपने रिवीजन स्टार्ट की तो ऑब्वियसली अगर मान लो आपने 20-25 डेज में एक रिवीजन खत्म कर ली, B19 से भी आप जितनी भी आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली आपने खत्म किया, तो एट द एंड ऑफ 25 डेज जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा वो उतना तो याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आपने 15th डे पे भी आपका कोई एग्जाम है तो आप ये सोचोगे ये सब्जेक्ट्स रह गए, लेकिन नहीं, हम्म। अगर आप 25th डे पे भी एग्जाम दोगे तो भी आपको फर्स्ट डे वाला तो उतना याद नहीं रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस तो तब भी डाउन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि एग्जाम स्किप करने हैं, कि नहीं जब मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ये सबके साथ होता है। कि जब पूरा तो प्रिपेयर होगा तभी देंगे पेपर, हाँ वो तभी गलत देंगे, माइंडसेट एग्जैक्टली है। वो मतलब हाँ एग्जैक्टली क्योंकि उसके बाद फिर आप ऐसा करते हो कि आपको हमेशा लगता है कि प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, एंड टू स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द एग्जाम। Nobody is हंड्रेड और अगर परसेंट prepared, I हाँ guess. एग्जैक्टली वो एट द डे ऑफ एग्जाम एज वेल कि वी आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड, ऐसा होता है। मतलब माय ब्रदर ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी कि तेरी तैयारी हो गई। मैंने कहा ये कोई क्वेश्चन होता है कि तैयारी हो गई? कि तैयारी हो गई ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो चलती रहती है, वो तो हमेशा चलती जल्दी रहती है। रहेगी, है ना। वो अगर मेरा एग्जाम जैसे अभी 14 नवंबर को, तो 14 दिसंबर को भी होता तो भी वो इतनी ही तैयारी होती जितनी मेरी अभी 14 नवंबर को है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हाँ तैयारी नहीं है कैसे करें। हाँ ऑब्वियसली, और उसके बाद क्या होता है जब हम एग्जाम्स देते हैं ये 3 आवर वाले, शुरू में नहीं आते रिजल्ट्स। उसके हम्म। बाद लेकिन अब ऐसा होता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि आप डीमोरलाइज हो जाओगे कि नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। जस्ट लुक, रिव्यू करो, लुक इनटू इट कि कौन से टॉपिक्स वीक है, कहाँ गलती है, क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे सही नहीं है, या रिकॉल में कुछ इश्यू है, या या कंटेंट पढ़ा नहीं ही है। नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं एग्जैक्टली आता। हाँ एग्जैक्टली टॉपिक ही नहीं आता। अब 3 चीजें, कंटेंट है, रिकॉल है, टाइम मैनेजमेंट है। अब कंटेंट ठीक है, कंटेंट तो रादर आई वुड से कि कंटेंट तो हर किसी के पास मिल ही जाता है, इतना सब है तो कंटेंट तो हो जाता है। अब द पॉइंट इज उसे पढ़ना कैसे है। अब रिवीजन आती है, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी तो एग्जाम में वही याद ही नहीं रहेगा। वही जैसा आप बोल रहे थे कि रिकॉल ही नहीं होगा, वो नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो वहां पे कुछ नहीं होगा आपसे। हाँ एग्जैक्टली, तो नहीं तो रिविजन सर मुझे याद आना चाहिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो हो जाना चाहिए। और वो अब रिविजन, पहली रिविजन तो किसी की भी कॉन्फिडेंट नहीं होती है कि हाँ आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मुझे अब याद ही रहेगा। नहीं, पहली रिवीजन हो गई देन ठीक है। अगर उसके बाद भी नेक्स्ट रिवीजन करोगे, अब होना चाहिए क्या कि टाइम जो नेक्स्ट रिवीजन के लग रहा है वो कम होना चाहिए धीरे धीरे। तो टाइम शुड ग्रेजुअली डिक्रीज फॉर रिवाइजिंग ऑल दोज 19 सब्जेक्ट्स। द अमाउंट ऑफ टॉपिक्स या अमाउंट ऑफ मटेरियल विच यू आर एबल टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट टाइम, इट शुड ऑलवेज इंक्रीज एंड द volatile topic should always decrease. बट फाइनली भी कुछ टॉपिक्स तो जैसे पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन्स है, उसको तो भगवान आके याद करा उसको भी नहीं याद होगा, ऐसा होता है। तो आई कुछ सेकंड चीजें दैट। ऐसी होती है, हाँ तो कुछ चीजें ऐसी होती है हर सब्जेक्ट में होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल। नहीं याद रहती, तो उसके पेपर लिए से एक दिन पहले इम्पोर्टेंट भी है। देख के जानी है।
हाँ एग्जैक्टली, हाँ, वो ऐसा ही होता है। जैसे रादर कुछ सब्जेक्ट्स ही ऐसे, जैसे एनाटॉमी है, वो तो सब्जेक्ट ही ऐसा है पूरा। मैं नहीं कहूंगी सब चीजें ऐसी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं कि हाँ उनमें नहीं याद रहता तो नहीं रहता, वो किसी को नहीं याद रहता। ऐसा नहीं है कि हम्म, हमारा ही माइंड कुछ अलग है, वो सब किसी को नहीं याद रहता। तो अब वो नॉर्मल है ना। आइडेंटिफाई करना जरूरी, हाँ नॉर्मल है। अब वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि हर के सेम होगा, तो वो आपको ही आइडेंटिफाई बिल्कुल, करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर आपने एग्जाम दिए तो आप रिव्यू करोगे, रिव्यू के बाद पता चलेगा किसमें ज्यादा गलत क्वेश्चंस हैं, या आपको रिकॉल किसमें नहीं होता। आपको हमेशा याद रहेगा एग्जाम में, यार ये तो पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा, तो उनको अच्छे से कॉल नहीं हुआ, उनको उसी टाइम ध्यान रखना कि हाँ ये रिकॉल नहीं हुआ तो ये मेरा थोड़ा वोलेटाइल टॉपिक है, तो आई मुझे पढ़ना चाहिए ये। एग्जैक्टली आई शुड रिवाइज इट मोर, या आई शुड रिवाइज इट नियर द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम के एंड में ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोस 19 सब्जेक्ट्स। तो बिल्कुल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में, एक तो वही आप बोल रहे थे क्यूआरपी, क्विक रिविजन का यही है कि क्विक रिविजन में ऑब्वियसली दे विल टेल कि हाँ हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि एम्स इज लाइक कि हाँ उनका तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं कि यही रिपीट करना। रादर इस बार भी वन क्वेश्चन वाज रादर थर्ड टाइम रिपीट, टू क्वेश्चंस वर या सेकंड टाइम रिपीट। हाँ, और अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट थे कि क्वेश्चंस ही वही के वही, वही ऑप्शंस वही पूछा है उसने, वही था। लेकिन अब हम्म, कुछ, अब एम्स इज लाइक कि वो टॉपिक्स भी बहुत रिपीट करते हैं, कि अगर उसको ये टॉपिक दिया है तो इस टॉपिक से वो सब रिपीट करेगा। तो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट, तो वो यही बताते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स। तो क्विक रिविजन का यही होता है कि हाई यील्ड तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ोगे तो एंड में अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ के जाना है, तो एग्जाम में तो फिर फायदा ही नहीं ना, कि फायदा ही जो नहीं है। चीजें जो चीजें हाई यील्ड थी वो आप रिवाइज नहीं करके गए, और जो चीजें आपकी वॉलेटाइल थी वो रिवाइज नहीं करके गए, बाकी सब रिवाइज कर लिया। तो एग्जाम में एग्जामिनर तो नहीं है ना कि हाँ बेटा आपकी वजह, आपके लिए हम आपके क्वेश्चन चेंज करेंगे, नहीं ना। ट्रू, उनको तो है ही कि उनको तो है ही कि वो अगर वो क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो सबके लिए वही है, तो तुम्हें भी वही अटेम्प्ट करना है, तो फिर खराब हो जाएगा ना सब, अगर पता ही नहीं है कि क्या रिवाइज करना है, क्या हाई यील्ड है क्या। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स भी आते हैं। अब ओके, प्रीवियस ईयर्स एम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इमेजेस बहुत आते हैं, और उनका यही है। ओके, अगर इस बार भी एग्जाम में 2 या 3 इमेजेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थे, तो वो बहुत आते हैं। तो वो ध्यान रखना होता है अपना कि ये टॉपिक आया था, इससे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज आई थी, तो तो नेक्स्ट अगली टाइम बार ये आ सकता है। शायद। एग्जैक्टली और सेकेंडली इमेज, अब ऑप्शंस में भी नेक्स्ट टाइम टॉपिक दे विल, जैसे जीबीएस है, इस बार भी जीबीएस पे क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज दिखा के, तो जीबीएस है। नेक्स्ट टाइम में भी वो जीबीएस में कुछ एंटीबॉडीज पूछ ले, या उसके वेरिएंट्स पूछ ले, या कुछ भी ऐसा मिलर फिशर सिंड्रोम या कुछ भी ऐसा पूछ ले। कुछ तो भी रिलेटेड, हाँ एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जीबीएस आपका जो टॉपिक है बिल्कुल वो घोट के पी आपका लेना चाहिए। एग्जैक्टली वो टिप्स पे होना चाहिए। तो ऐसे तो टॉपिक्स रिपीट करने होते, तो ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये तो है ही एम्स का, तो स्पेसिफिकली है कि एम्स को तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स है वो करते ही हैं रिपीट, हम्म, इसीलिए। एंड आई थिंक अभी एम्स वाले थोड़ा माइकोलॉजी की तरफ ज्यादा मैंने नोटिस किया, हाँ इस माइकोलॉजी बार भी, ज्यादा हाँ था माइकोलॉजी क्वेश्चन था। थे। हाँ और रादर हाँ पैरासिटो, था, हाँ पैरासिटो भी था, पैरासिटो का रादर वही। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस बार का एग्जाम मुझे लगा कि हाँ मिड ईयर आया ना, इस थोड़ा मुश्किल था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कुछ ओके, क्वेश्चंस वर, जैसे जैसे मैं आई विल गिव एग्जांपल कि हर बार दे ऑलवेज आस्क्ड कि कैन्युला का कलर के अकॉर्डिंग उसका गॉज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली, या शॉक में पेशेंट है तो अच्छा, कौन सा कैनुला, दे विल शो 4 कलर्स, तो कौन सा कैनुला का कलर ऐसे। इस बार they showed a green cannula and they asked for the flow rate. Who the hell remembers the flow rate of cannula? It was 4 options: 96, 76, 86, 106. मतलब ml per minute. So who remembers this? But उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉपिक तो वही रखा ना कि कैनुला से, वो लास्ट ईयर भी था, पिंक कैनुला पूछेंगे, दिखा के कुछ किया, तो कैनुला से। उसके बाद कुछ टॉपिक जैसे ट्रॉमा है, ट्रॉमा इज ऑलवेज, इमरजेंसीज है, इमरजेंसीज वो हमेशा पूछते ही है। तो कुछ टॉपिक्स तो होते हैं वो एम्स के लिए पढ़ के ही जाने हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर इन एग्जाम। देयर विल बी नो पर्सन हु विल रिमेम्बर, मतलब हु विल नो कि 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। देयर विल एग्जैक्टली, बी देयर विल बी समथिंग कि वो आपने कहीं सुना ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही है, कि तो अगर नहीं, ऐसा कुछ है कि आपने कहीं सुना ही नहीं, तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं, तो आप क्या मार्क करोगे, उसमें कुछ क्या पता ही रूल नहीं आउट ना। करोगे, कोई क्या नॉलेज नहीं है कोई उसकी। लॉजिक नहीं है आपके पास। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से आते हैं, और वो क्वेश्चन सब बच्चे करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब ये जो जिसमें कुछ नहीं आता वो छोड़ना है, कुछ होते हैं जो बहुत आसान होते हैं बिल्कुल नीचे, तो जो सब करते हैं। अब हम्म, एक चीज होती है, कुछ में आपको 2 ऑप्शंस आते हैं, और या 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो उसमें उनको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ
कि ये है कि ये आंसर ज्यादा लग रहा है, ज्यादा चांसेस है, दो में तो आपको रिस्क रूल आउट शायद ले करना है, लो। शायद ले सकते, क्योंकि ये भी है ना कि अगर आप ज्यादा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो हाँ, तो ये चांसेस ऐसा वैसे कम होते कम हैं। हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो थोड़ा विगरसली अटेम्प्ट करना होता है कि इस बार Vigorously। तो थोड़ा विगरसली अटेम्प्ट करना होता है कि हाँ, कि ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही, जैसे अगर 200 क्वेश्चन तो नियरली 195 या 190 प्लस करने हैं। ऐसे जैसे 180 किया तो क्या 20 मार्क्स तो आपके 200 में से वैसे ही चले गए, है ना। अगर आप उस 20 में से 10 भी अटेम्प्ट करते तो आपका मान लो, मतलब कुछ तो चांस होता है ना, कुछ ठीक होता है एटलीस्ट, ये तो नहीं कि 20 बस ऐसे चले ही गए। तो अटेम्प्ट तो आइडियली 190, और ऐसा हो जाता है यूजुअल एग्जाम में हर बार यही होता है कि 190 प्लस प्लस आपके होते हैं जो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब ये भी, अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, मैं पढ़ ही नहीं पाया या पाई, ऐसा तो ऐसा बोलते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे कैसे नॉर्मल। अब वो एग्जाम देने कैसे, जो 3 आवर वाले, वो लैपटॉप या पीसी पे ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जब जो आपका एग्जाम में होता है कि रूम लॉक, उसके बाद फिर कोई फोन साइलेंट पे, हाँ हाँ, फोन तो पानी स्विच रखना ऑफ। है। मेरा तो आइडियली तो फ्रॉम जैन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड टिल 14 फोन ऑलमोस्ट स्विच्ड ऑफ रहता था, कुछ था ही नहीं, बस इमेजेस और वो सब देखने के लिए होता था यूज। तो ऐसा तो ओके, फोन तो साइलेंट भी नहीं, फोन तो साइलेंट पे तो हम फिर भी देख लेंगे, फोन स्विच लॉकर ऑफ। में रख दो। हाँ वही वही, आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू पुट द फोन इन द स्विच नहीं, स्विच इट अच्छी ऑफ, बात है, फोन इज स्विच सच अ इट ऑफ। डिस्ट्रैक्शन। हाँ, स्विच इट ऑफ एंड पुट इन द ड्रॉर, की मतलब मैं क्या फेंक दो इसे, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा। उसके बाद फोन तो नहीं, उसके बाद बीच में नो वाटर नो वॉशरूम, क्योंकि एग्जाम में तो हाँ। पानी तो तो मिलता है एम्स के एग्जाम में, लेकिन आई यूजुअली अवॉइड, बिकॉज देन वॉशरूम तो जाना पड़ेगा, अब टाइम वेस्ट होता है, 5-10 मिनट भी लग जाते हैं ऐसे। तो इसीलिए तो यही एनवायरनमेंट होना चाहिए हर एग्जाम में। अब इम्पोर्टेंट ये, अब टाइमिंग, अब टाइम होता है एग्जाम का 9 to 12। इस बार तो हर बार नीट थोड़ा बीच में होता है, मतलब दोपहर में होता है, लेकिन इस बार इट वाज 9 to 12 ओनली। सो वील टॉक अबाउट कि 9 to 12, तो जो एग्जाम देने घर पे या जहां भी 3 आवर वाले, वो 9 to 12 में ही देने हैं। ओके। क्योंकि ऐसा भी होता है, जैसे मेरा तो यूजुअली रहता था, मैं दिन में सो जाती थी, मतलब मेरा था ही कि मैं रात में 6-8 घंटे भी सोई हूँ, लेकिन मेरा होता था, मुझे पता नहीं, इट वाज नॉट लाइक कि नार्कोलेप्सी आफ्टरनून है, आप। नहीं इट वाज नॉट लाइक कि मुझे नार्कोलेप्सी है, लेकिन मुझे था ऐसा कि हाँ मुझे सोना है, कुछ भी हो जाए मुझे सोना है, ऐसा था। बट देन आई रियलाइज कि हाँ, या समवन टोल्ड मी कि हाँ दिस वुड नॉट हेल्प, कि कि 9 to 12 में तो ऐसा कंसंट्रेशन जो पूरे एक्टिव दिन में रहना चाहिए। एग्जैक्टली जो सबसे ज्यादा हो पूरे दिन में, आप 9 to 12 में इतना एक्टिव होना चाहिए कि हाँ है ही तो, क्योंकि क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जाम बिल्कुल। में नहीं पता होता ना, एग्जाम में कि नींद आने लग जाए या कंसंट्रेशन जरा सा ही ब्रेक हुआ, तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर जब टाइम वेस्ट होगा तो आपके कुछ क्वेश्चन आप थोड़ा लैग कर जाओगे, अब लैग पैनिक कर गए करोगे। एक बार तो पैनिक करोगे, पैनिक किया तो फर्दर जो आपको आता होगा वो भी आप गलत करोगे या कर ही नहीं पाओगे। तो सब छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जाम में मैटर करती है। सिर्फ लगता है शुरू में कि हाँ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, लेकिन एग्जाम वाले दिन बहुत पता दैट चलता है कि वन डे हाँ, मैटर्स सो मच, हाँ द एग्जैक्टली 3 आवर्स। मैंने वही बोला कि लास्ट के 1 मंथ में इट रियली डजंट मैटर कि कितना पढ़ा है। ऑब्वियसली यू विल रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज, इट इज नॉट लाइक कि हाँ यू हैव शट डाउन योर बुक्स एंड कि नहीं पढ़ना, नहीं छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ना है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, कि एग्जाम वाले दिन आपको कैसे रहना है, वैसे ही आपको बिहेव पूरा दिन करना है। 9 to 12 में आपको कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, किस मतलब आप कैसे, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम टाइम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन तो वो पहले से प्रिपेयर। अब स्लीप वेक साइकिल, अब सेंटर्स बहुत लोगों के दूर होते हैं, मेरा तो हमेशा ऐसा होता कि थोड़ा दूर होता था, इस बार भी दूर था थोड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लीप वेक साइकिल। आई एम ऑलवेज नाइट में स्टडी करती थी मैं हमेशा, मेरा एमबीबीएस टाइम से था कि सुबह थोड़ा लेट उठना है, चलो कॉलेज टाइम में तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन था कि रात में लेट लेट तक पढ़ना। तो मेरी अब भी प्रिपरेशन टाइम में यही आती शुरू में तो, कि लेट तक पढ़ना था और सुबह थोड़ा लेट ही हो जाता उठने में। लेकिन देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर एग्जाम 9 o'clock है और एंट्री टाइम अगर 7 o'clock है टिल 8:30 है, तो आपको जल्दी ऑब्वियसली उठना यू हैव चाहिए। टू, हाँ तो जल्दी उठना है। अब सेंटर्स भी लेट होते हैं, मे बी इतना भी नहीं कि आप लास्ट डे जाओ या कुछ ऐसा, तो आपको रात में थोड़ा, तो थोड़ा स्लीप वेक साइकिल, और स्लीप वेक साइकिल बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आप सोए 2 o'clock, नेक्स्ट डे सुबह आपको उठना है बहुत जल्दी, तो नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज कल आपका एग्जाम है तो आज आप, मतलब परसों आप सोए 2 बजे रात में और नेक्स्ट डे आपको 10 o'clock नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल। आएगी ही नहीं, उसके बाद तो फिर पहले से ही। आपको जब उठना ही सुबह 4 बजे और आप 2 बजे सो रहे हो, तो 2 घंटे सो के तो आप एग्जाम में थोड़ा ना सोने जाना है,
ऐसे थोड़ा है। तो इसीलिए तो ये है कि ये स्लीपिंग साइकिल बहुत, मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती है, पहले नहीं लगता, पहले वी बट ऑलवेज़ दैट इज थिंक, सो इम्पोर्टेंट। हाँ, एग्ज़ैक्टली वी ऑलवेज़ थिंक कि हाँ, बस पढ़ाई चाहिए, कि बस पढ़ अच्छे से लिया है कि एग्ज़ाम में सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में खुद ही टाइम, करना पड़ेगा ये हाँ, सब। एग्ज़ैक्टली ये सब भी खुद ध्यान रखना पड़ता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती है कि नहीं, लेकिन इन पे ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये छोटी-सी चीज़ पता नहीं सब सब रुइन हो जाएगा इससे। सब पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट कैसे, कितना, इट इज हाँ। डिटरमिन, मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं, हाँ, पढ़ाई एग्ज़ैक्टली तो खैर नॉलेज तो है ही, उसके है बिना तो ही। नहीं हो सकता कि अब बिना हाँ, पढ़े कुछ नहीं, वो तो है ही, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको फिर उसके बाद अगर आप ये कुछ ऐसी चीज़ है एग्ज़ाम में जो आप अ, मतलब नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से अगर आपका सब खराब होता है, देन इट रियली फील्स बैड बहुत दुख कि होता है फिर तो। क्यों पढ़ाई तो की थी, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा पहले देख लेता या देख लेती, तब ऐसा लगता है कि काश मैंने देख लिया होता। हाँ, वो लेकिन मेन चीज़, रिग्रेटफुल। हाँ, हाँ, और वो रिग्रेट भी ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ाई नहीं की, वो रिग्रेट भी छोटी-सी चीज़ का ही होता है, तो बहुत कि लगता अगर है उस कि पे हाँ, काम करा होता तो शायद। हाँ, ऐसा। हुँ, सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये इनसाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। सो गाइस, आई जस्ट समराइज कनुप्रिया ब्रीफली सो फार वट एवर यू हैव शेयर्ड विद अस। सो गाइस, पढ़ना तो खैर होता ही है, प्लस आपको बार बार रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं बार बार, इन दैट यू नो recreate that environment in your house, switch off your phone, just dump it away, keep a glass of water with you, and seriousness से एग्जाम तो देना ही है। और एज शी राइटली पॉइंटेड आउट कि नोबडी इज एवर फुली प्रिपेयर्ड। टॉपर भी जो होता है वो भी कितना 65-70% उतनी आते हैं ना उसके, इसका मतलब 30 to 35% तो उसको भी नहीं आता, वो सिर्फ एग्जामिनर को ही आता है। तो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट को फेस करना है, एंड उसके बाद एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से क्वेश्चंस याद नहीं आए हैं। मेक अ लिस्ट, आई वुड से कि एक बार कोई चीज लिख लेते हैं ना, तो एग्ज़ैक्टली, हम पे एक थोड़ी क्या बोलते हैं लाइबिलिटी आ जाती है कि ये मैंने हाँ, लिखा है तो अब ये तो मुझे करना करना है, चाहिए। एग्ज़ैक्टली एक करना टू है। डू लिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ कि ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था या ये मुझे याद नहीं आया, एंड देन रिवाइज दोस टॉपिक्स। आस्क फैकल्टीज योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। ये इसी तरह से आपको अपने वीक टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, कंसोलिडेट करना है, और एक दिन का काम नहीं है, शी राइटली सेड। एग्ज़ैक्टली, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस हर सेकेंड ईयर एमबीबीएस, है ना, सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। तो एंड प्लस दी हाई यील्ड टॉपिक्स जो क्विक रिवीजन प्रोग्राम में हम लोग भी करते हैं डिस्कस। एग्ज़ैक्टली, हाई यील्ड टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि भाई उनको करे बिना आपको मतलब किसी को पेपर देना ही नहीं चाहिए शायद। तो वो टॉपिक्स जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो टॉपिक्स की जानकारी, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये तो आपको करके ही जाने हैं। एंड डोंट रन आफ्टर रेयर थिंग्स बिकॉज रेयर क्वेश्चंस आर एग्ज़ैक्टली, उसका हाँ। क्या फायदा। और एंड अगर आई आपने नहीं भी, अब कोई ऐसा क्वेश्चन है, वो तो क्या पता टॉपर को भी नहीं आता वो, या ऐसे किसी इंसान को आता हो जिसकी रैंक पीछे है, और और उसकी रैंक पीछे क्यों है, क्योंकि उसने बेसिक्स या जो हाई यील्ड टॉपिक्स थे वो किए ही नहीं। तो इसीलिए जो कम आती है चीजें उनके ऊपर वो कम ही आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, नहीं। अगर आपने बेसिक्स ही छोड़ दिए या अपने हाई यील्ड टॉपिक्स ही आप नहीं पढ़ के गए, तो क्या फायदा थोड़ा है उससे। क्या फायदा। कोई रेयर सा सिंड्रोम पढ़ रहे हो हाँ, और एग्स की अगर जैसे अभी एग्स पे क्वेश्चन आया था ना, माइक्रो हाँ, में, हाँ, हाँ, अगर आया था एग्स ही इमेज पढ़ के वाला। नहीं गए, रिवाइज हाँ, करके हाँ, नहीं गए, तो एग्ज़ैक्टली, गाइस ये तो ब्लंडर है, एग्ज़ैक्टली। मैं मैंने नहीं वही करने बोला दूंगा। कि लास्ट में इमेजेस, अब आजकल तो सब सीबीटी है, तो इमेजेस तो आती हैं, तो लास्ट में बस यही था कि लास्ट, मैंने वही बोला कि लास्ट में आई यूजुअली मतलब मतलब कि 7+1 डे, 1 डे में कुछ पढ़ती थी लास्ट में। अभी तो कोविड था तो इसलिए मैं सिर्फ कोविड पढ़ती थी, लेकिन यूजुअली मैं ज्यादा नहीं पढ़ती थी। उसके बाद 7 डेज में मैं वही वो अब मैं 7 डेज और 8 डेज यूजुअली यूज करती हूँ, लेकिन हर का अलग अलग, जैसे उसके अगर किसी को 10 डेज लेने या 15 डेज भी लेने, ठीक है, ताकि वो अपने वॉलेटाइल टॉपिक्स और रिवाइज कर, इमेजेस सब देखनी है। इमेजेस में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इंक्लूडिंग पैथ, माइक्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजेस पैथ तो है ही। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद आजकल तो हर सब्जेक्ट में वो इमेजेस डालते हैं, एनाटमी, तो इमेजेस देख के जानी है बहुत सारी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में डायग्नोसिस बन गया है, डायग्नोसिस पता है, लेकिन इमेज में जो चीज पॉइंट आउट कर रखी कि ये क्या है, वही नहीं आ रहा होता कि क्या है ये। तो इसीलिए फिर अब ये नहीं आएगा कि पूछा ही उसके बारे में। बहुत बार वो ऐसा करते हैं, या तो डायरेक्टली वो इमेज से ही कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा, बस ऐसे ही कुछ नहीं लिखा उसने, बस इमेज से डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया, तो जब इमेज इन देखी तो क्या आएगा। बहुत बार ऐसे भी ये करते हैं एम्स वाले कि क्वेश्चन पूरा लिख दिया, उसमें डायग्नोसिस आराम से बन गया है, लेकिन अब जो आंसर पूछा है वो उस इमेज से पूछा है, अब इमेज नहीं आती तो अब डायग्नोसिस बनने का क्या फायदा,
कि जब बिल्कुल। इमेज ही नहीं आ रही है तो इमेजेस जरूर देख ले। बस हम बहुत बार इसे नेग्लेक्ट कर देते, कोई बात नहीं इमेज ही तो है आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड में इमेजेस देखनी है। इमेजेस शुड बी कि फोन में होना चाहिए या लैपटॉप में होना चाहिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है। मुझे फोन बहुत हैंडी लगता था, इसलिए मेरा फोन में रहता था। पीडीएफ है या जितने भी गैलरी में आपके फोल्डर्स है, वो एक जगह पहले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम के 2 दिन पहले आप पैनिक कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट कर रहे हो कि इमेजेस चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही होना चाहिए कि ये इमेजेस है तो इनको देख के जाना है। और तो और इमेजेस प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट होती है। अरेंज, ये हाँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्ली बात बोली आपने प्रॉपर्ली कि अरेंज्ड होनी चाहिए कि गैलरी एंड में में, ढूंढ रहे हो कहीं पे भी हाँ तो वो हो। कहीं भी मिल रहा है तो वो एक फोल्ड, आजकल तो हर जगह फोल्डर्स बन सकते हैं और ये सब है कि फोल्डर है। जैसे माइक्रो का है तो आई ऑलवेज माइक्रो में आई हैड द पीडीएफ 3-4 पीडीएफ, हर वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और हर चीज की थी। तो लेकिन नहीं भी है तो आप अगर आपको अगर किसी से अरेंज भी करना है तो अरेंज, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम से 2 दिन पहले आप अरेंज कर रहे हो। वो शुरू से जब आप हम्म, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उसी से यू शुड स्टार्ट साथ कलेक्टिंग। साथ हाँ कि उस टाइम है ताकि एग्जाम के पहले मुझे कोई पैनिक ना हो, हमेशा ऐसा ही होता एग्जाम है। से पहले तो मतलब कोई ये सब करने का पैनिक ही पॉइंट ही क्रिएट नहीं है होगा। ना, अभी एग्जैक्टली कुछ ढूंढ होगा रहे ही हो। नहीं। हाँ तो इसीलिए तो इमेजेस इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक और, अब शेड्यूल का मैम आप बोल रहे थे कि हाँ डेली का अब 2 शेड्यूल्स होते हैं। अब आई यूज टू डू कि 19 सब्जेक्ट्स है, अब आई ऑलवेज यूज टू टेक इट दिस टाइम कि 19 + 1 20, क्योंकि कोविड था तो कोविड में को बस लगा कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। उसकी माइक्रोबायोलॉजी थी, फिर उसके डायग्नोसिस था, माइक्रोबायोलॉजी में और कितनी चीजें चेंज इन्वेस्टिगेशन, भी हुई है ना। एग्जैक्टली चेंज भी हुई है, प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, उसका फिर वैक्सीन्स तो इतनी इंपॉर्टेंट की वैक्सीन्स ही था। तो ऐसे तो बहुत हम्म। बहुत बड़ा था। अब तो इसीलिए कोविड को मैं हमेशा था कि पढ़ के ही जाना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ते, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस आते हैं ना, इट रियली गिव्स यू अ फील ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ यू परफॉर्म वेल इन द क्वेश्चंस ऑफ कोविड, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ऐसा। अब उसके बाद अब आया कि हाँ शेड्यूल, अब टोटल 19 सब्जेक्ट्स है तो उसमें अब एक शेड्यूल आई यूज टू मेक इट कि आज अगर मुझे अभी 21 से स्टार्ट करना है तो 21 के आगे मुझे क्या सब्जेक्ट लिखने हैं। तो आई यूज टू मेक अ शेड्यूल की डेट लिखा होगा, उसके आगे सब्जेक्ट लिखा होगा कि मुझे 19 सब्जेक्ट्स हम्म। आज से लेके मुझे कितने दिन में खत्म करने हैं। टोटल एक ये मेजर शेड्यूल था। अब उसके बाद डेली का एक शेड्यूल होता है कि जैसे कल मुझे सुबह उठ के ये करना है, तो मेरा रात में ही प्रिपेयर होता था कि ये मुझे सुबह उठना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से इस टॉपिक को इस टाइम पे पढ़ना है। तो ये मिनी शेड्यूल, अब ये मिनी शेड्यूल, अब वो तो अब हाँ अब जरूरी नहीं है कि मिनी शेड्यूल हार्ड कॉपी पे हो। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हाँ कि वो उनके माइंड में ही रहता है कि हाँ कल सुबह ऐसे उठना है और ऐसे प्लान है। लेकिन जैसे भी हो, वेदर इट इज ऑन हार्ड कॉपी और इन योर माइंड, कि इट शुड बी देयर इन योर माइंड कि हाँ मुझे मेरा कल प्लान क्या है, ताकि ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के आधा घंटा तो आप इसी में लगा रहे हो, आज मैं क्या पढ़ूं कैसे स्टार्ट करना है। नहीं, वो रात को सोने से पहले होना चाहिए वो ये। ओके, वेल प्लान्ड स्टडीज की उसके मुझे बाद फिर ये करना भी क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली ये पता तो होना चाहिए ना क्या करना है। उसके बाद ये करना है क्या कि है। अब डेली डेली का आपके पास टारगेट होना चाहिए कि अगर आज मान लो आपने कोई भी, जैसे आज और कल में आपने डिसाइड किया कि आपको 1.5 डे 2 डेज में आपको माइक्रो फिनिश करना है, तो आपने ऐसा लिखा। उसके बाद फिर अगर आपने माइक्रो फिनिश उतने ही टाइम में जितना आपने सेट किया था हो गया, देन नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, यू विल फील कॉन्फिडेंस ना कि हाँ इफ आई एम एबल टू डू दिस सब्जेक्ट इन दीज मच डेज देन आई कैन डू एनीथिंग ऐसा। लेकिन अगर अभी आपने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, अगर आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया तो आपको क्या टारगेट, आप क्या सेट करोगे, तो आप पढ़ते भी रहो, आप चाहे टाइम, अब आप टाइम अगर ज्यादा भी लगा दो या कम भी लगा दो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं होगा, बस लगता है कि हाँ चल ही रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो वो मेरे को तो बहुत हेल्पफुल था कि मैं हमेशा रोज का रोज नया शेड्यूल, नए पेज पे सब कुछ ऐसा होता था कि यू हैव करना ही है समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि कल मेरा ये एम ये। है, मुझे हाँ इतना करना हाँ, है। और जब आप ऐसे देखते हो तो होता है, वो सच में होता बिल्कुल, है कि मोटिवेशन भी आई थिंक। एग्जैक्टली होता है। आई थिंक ओके, विद दिस अभी टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आई थिंक सारे बच्चे पूछना भी चाहेंगे कि इतना आई मीन इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम एक मेडिको की लाइफ का कि टू गेट अ पीजी सीट। अब इसमें क्या होता है बीच में ठीक है हार्ड वर्क हर कोई करता ही है, प्लस आई थिंक एक स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एंड एज वी हैव बीन टॉकिंग सो फार, guys, this is all the smart work along with the hard work which she has done, so make a note of it. Plus डॉक्टर कनुप्रिया एक चीज और भी है कि चाहे हम जितना मर्जी पढ़ लें, कहीं ना कहीं बीच में लगता है ना कि बोर हो रहे हैं, या एग्जैक्टली मतलब अभी फ्रस्ट्रेशन और वो सब। फ्रस्ट्रेशन और हाँ मतलब कि हो घूमने का नहीं भी रहा मन है, करता है। एग्जैक्टली अब ऐसा होता है कि करें जब क्या।
अब देखो मोटिवेट कैसे रिवीजन, लगता हाँ अब रिवीजन का माइंडसेट है और एक क्वेश्चंस का माइंडसेट है। अब व्हाट आई यूज टू डू इज कि ठीक है, मतलब एवरी मॉर्निंग आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि नो, कि दैट डे विल कम व्हेन द रिजल्ट्स विल कम, एंड मतलब वट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन, देन रिजल्ट आई विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, इट विल बी लेट बट डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट्स, ऐसा होता था हमेशा। तो ये तो रोज सुबह उठ के समझाना है कि हाँ होगा, हो जाएगा ऐसा। तो अब पूरा दिन पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बोर होगा ही, तो इसीलिए जो शेड्यूल होता है उसके अंदर ये भी डालना है कि क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस करने का, एमसीक्यू सॉल्व करने का माइंडसेट अलग होता है और रिवीजन का ऑब्वियसली पूरा डिफरेंट माइंडसेट होता है। अब पूरा दिन ऐसा नहीं होगा कि आज रिवीजन की अगले 2 दिन आप एमसीक्यूज कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या है कि अब प्रॉपर आवर्स डिसाइड करने कि इतने आवर्स या 1 आवर 2 आवर, ये जितना भी आपको लगे, 2 आवर मैक्स, मेरा तो 1 आवर या 1.5 आवर होता था कि इतने टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इस सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, क्योंकि तो ये रहता है कि इससे आपको थोड़ा बोर भी नहीं होता, आपको रिवीजन भी आपकी उसी पेस पे रहती है और आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिवीजन करोगे तो आपको एमसीक्यूज पे भी होल्ड चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करने लग जाओगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि रिवीजन में थोड़ा लैग हो गया है और नेक्स्ट टाइम आपको उसी ट्रैक से स्टार्ट करने में मुश्किल होगा। तो ये दोनों साइड बाय साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कुछ दिन रिवीजन किया, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया कि हाँ सब याद ही है, उसका कुछ दिन आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, अब अच्छी बात है एमसीक्यू सॉल्व किए, लेकिन उसके बाद उस रिवीजन के ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए माइंडसेट इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि ट्रू। दो चीजें होती है। अभी शुरू में जब रिवाइज करोगे तो नहीं याद होता है, नेक्स्ट टाइम अब फर्स्ट रिवीजन तो हो जाती है, सेकंड रिवीजन जब करोगे तो लगेगा कि अरे ये तो याद है, क्यों रिवाइज कर रही हूँ मैं, फिर उसी टाइम फिर ये लगेगा नहीं रिवाइज कर लेना चाहिए। तो बहुत अलग माइंडसेट है, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना कि हाँ कोई बात नहीं, याद है तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज करना ही करना है। और एंड में असेस करना जरूरी है कि रिविजन सही पेस पे है नहीं, उसके लिए मैंने वही 3 पॉइंट बता दिए, टाइम कम होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ थिंग्स जो तुम याद रख रहे हो वो इंक्रीज होना चाहिए, एंड वॉलेटाइल टॉपिक्स डेफिनेटली शुड इंक्रीज, एंड डेफिनेटली यू शुड नो योर वॉलेटाइल टॉपिक्स। वो नहीं पता तो एग्जाम से पहले यू विल नॉट बी एबल टू नो कि व्हाट यू वांट टू रिवाइज, व्हाट यू नीड टू रिवाइज बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, ऐसा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मतलब हाईलाइट किया कि जो क्वेश्चंस और आई थिंक थ्योरी होती है ना, कुछ लोग मैंने ये देखा है कि उनकी थ्योरी में वो बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन हाँ दे आर नॉट क्वेश्चंस एज में वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, एंड उस एग्जैक्टली वजह से ना वो थ्योरी पढ़ते रहेंगे हाँ। कि क्वेश्चन चलो कर अब लेंगे, ये मैंने भी कभी है कि, नहीं और किया। उसका फिर एक रीजन बहुत बार ये भी होता है कि वही मैंने जो पहले बताया इंटीग्रेशन वाला, कि क्वेश्चंस आर हाँ, ऑलवेज इंटीग्रेटेड, कि ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ एक माइक्रो का, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, जैसे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इस लेकिन बार भी थे। लेकिन हाँ इस बार भी थे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वही आपने एग्स वाला बताया, मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, तो वो सब, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भी आते हैं। और सेकेंडली जब आप कुछ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट पढ़ते हो देन इट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग, कि हाँ पढ़ रहे हो, ए, पढ़ना तो है ही, पढ़ तो तो सब रट्टे नहीं लेते मार हैं, रहे हो, आप समझ के एग्जैक्टली पढ़ रहे हो। समझ रहे हो कि आपको एग्जैक्टली उस चीज के, अगर आप कोई, मैंने भी बताया डायबिटीज पढ़ रहे हो तो आपको डायबिटीज के बारे में पता है कि आपको कैसे डायग्नोज करना है, क्या उसके पैरामीटर्स है, क्या डेक्सट्रोज लेवल है जिसमें आप उसको डायग्नोज करोगे, फिर उसका डीके क्या है, उसके ड्रग्स क्या है, ओरल ड्रग्स क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग्स क्या है, आपको डीके को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो सब अगर आपको एक साथ ही पता है तो डायबिटीज में किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाए, हाउ डज इट इवन मैटर हाउ कि डज इट हम, मैटर, कि अगर एग्जैक्टली। वो ड्रग पूछ रहा है या तुम्हारे डीके का कुछ वो पूछ रहा है, या वो लेवल्स पूछ रहा है, या वो क्या पूछ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस पूछ रहे हैं। अब डायबिटीज डीके आ गया तो उसमें माइक्रो से आता है म्यूकर, अब तो कोविड में म्यूकर इतना था कि म्यूकर में तो क्वेश्चन आते ही, वही आपने बताया माइकोलॉजी, माइकोलॉजी तो भर भर के हो ही रही है पिछले 2-3 बार से। तो इसीलिए अब म्यूकर पढ़ रहे हो तो अब मेरे को लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन ठीक है अगर मन है तो म्यूकर पढ़ना है तो पढ़ लो, क्योंकि फिर अब मेरा ये रहता था हमेशा कि अगर म्यूकर पढ़ लिया तो सारे अपॉर्चुनिस्टिक एस्पिरेट इन्फेक्शन भी पढ़ पढ़ ले लेंगे। तुम, हाँ वही अपॉर्चुनिस्टिक सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फिर अब माइको ही थोड़ी सी बची है तो मेरा विषय कि माइको भी मैं पूरी खत्म पढ़ ही कर लेती हूँ, लूं। माइको इज नॉट दैट बिग ना, कि हाँ ज्यादा हाँ, नहीं है कि बहुत हो जाते डुएबल हैं। है। और हाँ वो भी है, और सेकेंडली आसान भी बहुत ज्यादा है, उसके इमेजेस ही, उसके बहुत इमेजेस। इमेजेस कितने आते हैं और इमेजेस याद भी रहते, तो
ये था। तो यही रहता है कि जब आपको पढ़ना होता है तो थोड़ी सी बहुत बोरिंग हो जाता है रिवीजन, क्लैरिटी में पढ़ो। तो हाँ एग्जैक्टली, तो प्लान करना होता है कैसे कि थोड़ा आपको खुद ही उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। आई ऑलवेज यूज टू डू दिस, लाइक कि काव्या वो मतलब वेरी मच परफेक्ट इन ऑल दीज, कि वो ये करती थी कि अगर मुझे, मैंने आज मान लो डायबिटीज पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो मैंने म्यूकर पढ़ा है, तो म्यूकर का मैं पूरा ऑर्चेनिस्टिक इन्फेक्शन पढ़ूंगी, उसका तो पूरी माइको खत्म कर दूंगी। तो शी वाज लाइक दैट ओनली, कि वो ऐसे खत्म कर दी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब माइक्रो रिवाइज करेंगे तो एटलीस्ट वी आर श्योर कि हाँ माइकोलॉजी तो खत्म हो गई है, तो थोड़ी कम रिवाइज करनी है, ऐसा। क्योंकि ओके। एग्जाम में तो ऐसा नहीं है ना कि वो पूछेंगे कि अलग से माइको का पूछ रहे हैं, या अलग से फार्मा का पूछ रहे हैं, अलग से वो मेडिसिन का पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। आपको फाइनली क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए और आपको रिविजन चाहिए, वो चाहे आप किसी तरीके से करो जिससे आपको अच्छा लग रहा है। तो वो तो ऐसे आई यूज टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि हाँ रिविजन ऐसे इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, आप बस एक ही सब्जेक्ट पे थोड़ा बोरिंग रहता है, इसलिए मेरा ये प्लान होता था हमेशा ऐसे। ओके, वेरी वेल सेड। सो बेसिकली आई थिंक अगर मैं इसको इन अ नटशेल बोलना चाहूँ तो हमें करना क्या चाहिए, सब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए कि एक टॉपिक जो भी पढ़ना है उसको अच्छी तरह से पढ़ डालो, सर्जरी के साथ एनाटॉमी भी साथ साथ बिल्कुल एग्जैक्टली रिवाइज एग्जैक्टली कर डालो, एग्जैक्टली। कुछ मत छोड़ो। प्लस हाँ एज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एमसीक्यूज उस टॉपिक के साथ साथ ही करो, और एमसीक्यू एग्जैक्टली। से करना नहीं है, बिकॉज हाँ अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द एमसीक्यूज। एग्जैक्टली। You are not going to appear for any theory exam or viva voce na. हम्म Of course theory is very important to be able हम्म to attempt MCQs also, हम्म लेकिन MCQs छोड़ने नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 दिन तो थ्योरी में फोड़ लिया फिर 2 दिन सिर्फ हम्म MCQ कर रहे हो, नहीं। एक हम्म बेसिकली दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, साथ साथ करो। एंड लर्न द आर्ट ऑफ रूलिंग आउट ऑप्शंस, एज शी राइटली सेड एग्जैक्टली। कि टेस्ट देने पे ही आएगा। फिर आपको एक थोड़ी सी ना आपकी यू विल स्टार्ट डेवलपिंग हंच फॉर सर्टेन क्वेश्चंस कि अच्छा ये एग्जैक्टली। तो कुछ सुना हुआ नहीं लग रहा है, इसको छोड़ देती हूँ, और ये तो सुना सुना लग रहा है, ये 2 ऑप्शन नहीं लग रहे हैं, ये बाकी दोनों में से इवन इफ यू आर एग्जैक्टली। एबल टू रूल आउट 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शंस ऑप्शंस, हाँ and हाँ। you narrow it down to the remaining 2 and you attempt that question, so guys there are 50% सम चांस chances की इट विल बी for राइट। you to हाँ, get that question और right ना। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन जो आपको हम्म सिनेरियो दिया होता है उस क्वेश्चन में, बहुत बार ऐसा होता है सिनेरियो दिया होता है तो आपको उसका डायग्नोसिस नहीं पता कि डायरेक्ट डायग्नोसिस क्या है, लेकिन आपको ये ऑप्शन पता है कि हाँ ये तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। नेगेटिव से रूल आउट करके आपका आंसर आ जाता है। तो उसे डरना नहीं है उस क्वेश्चन से, और ये तभी आएगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट और ये 3 आवर के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब हम्म दोगे, तो तभी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बस पैनिक कर रहे हो कि ये क्या क्वेश्चन है, मेरे को तो पता ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑप्शंस तो देखो ना, ऑप्शंस तो देखो, हम्म आपको पता है कि ये ऑप्शन है, ये तो इसका नहीं है, तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आंसर निकल आता है, और इससे फिर बिल्कुल। डरना नहीं है, वो जितना डरोगे तो फिर वो उतना डराएगा ही, ऐसा होता है। इनफैक्ट पता है जितने टेस्ट दोगे तो अल्टीमेटली जब मेन हाँ मेन डे दैट डी डे आएगा तब डर निकल जाएगा मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ इतने लगेगा ना कि इतने ऐसी फीलिंग आएगी कि इतने इतने हाँ, मॉक दे टेस्ट दे दिया तो उसमें कि भी क्या फिर कर ही डरना लोगे, है ना। एग्जैक्टली तो ऐसा होता क्योंकि है। वो आई थिंक कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ते बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 3 घंटे में जो सहम जाते हैं ना, उससे जैसे एज यू आर ऑल्सो सेइंग कि सिर्फ पढ़ाई मैटर अकेले नहीं करती है, ये सारी चीजें कि अपने इमोशंस को कंट्रोल, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना, एग्जैक्टली। डरना नहीं है, उस दिन अपना काम कंपोजर वो 3 घंटे बना के रखना है। स्लीप वेक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। पॉइंट आपने हाईलाइट किया। तो गाइज ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। एंड थोड़ा सा मैं पूछना और ये चाहूंगी कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कोई अब स्ट्रैटेजी की मुझे किसी इसी कुछ भी, जैसे लोग कुछ वीडियो देख लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, या कुछ भी, व्हाट वाज योर वे ऑफ कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड यू अब नो। मैंने मिड ईयर दिया था, वो फर्स्ट एग्जाम था, तो उसके लिए तो ठीक है कि मिड ईयर आ रहा है तो करना ही है, कि मिड ईयर हम्म है तो करना ही है, तो मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मैंने बहुत एग्जाम दिए, मतलब मैं मेरा पर से पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि तो मेरा तो हम्म फर्स्ट एग्जाम था तो था कि देना ही है, उसके बाद फिर नीट। अब मिड ईयर में आई कुडंट स्कोर इतना, मतलब इट वाज वेल बट आई कुडंट गेट माय ड्रीम ब्रांच इन दैट अच्छा नॉट वाला एज पर कॉलेज। योर हाँ एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली, आई वाज नॉट दैट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई आई मतलब आई वाज नेवर क्या कहते हैं रेडी टू कॉम्प्रोमाइज माय ब्रांच। सो इसलिए मेरा हम्म था ही कि नीट बहुत अच्छे से देना है कि मुझे मिल जाए, मेरे को जो कॉलेज हम्म चाहिए और मुझे जो ब्रांच चाहिए मिल जाए। अब नीट हो गया, अब नीट के बाद अब ऐसा होता है कि अब नीट के बाद मतलब माय पेरेंट्स वर लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं देना तो एम्स ठीक है, क्योंकि आई वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा कि मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, नीट के थ्रू तो हो जाएगा, तो क्या एग्जाम देने की जरूरत है। तो एक बार के लिए मुझे लगा भी, लेकिन देन एट द नेक्स्ट सेकंड आई वाज लाइक कि नहीं एग्जाम देना ही है। अब ये भी है कि अब लेकिन मेरा हमेशा ये थॉट ये रहता है कि अगर
I was not able to get into AIMS from mid-year AIMS, although Kavya was, yeah, मतलब Kavya got a very good rank, तो she is in AIMS only. तो इसलिए रहता ही है कि अब, लेकिन अब मैंने उस टाइम अगर मैं सोच लेती कि हाँ मेरे साथ ही क्यों हुआ, although these thoughts also came into my mind कि I was having dual emotions कि हाँ I was very much happy for Kavya, and at the same second I was very much frustrated myself कि हाँ I could have done better, I could have performed well. That's why मतलब, but I always think कि everything happens for reason. Although we True. might not know that reason at this particular point of time, but in the long run, there may be any reason. I don't know now what was the reason, but ठीक है, I always होता है अच्छे के लिए होता है। console myself कि हाँ everything happens for reason, तो ठीक है, ये हुआ है तो कोई reason ही होगा, तो ठीक है, then I decided कि हाँ कोई बात नहीं, कुछ reason है, मुझे नहीं पता क्या reason है, लेकिन होगा, तो इसलिए ये हमेशा perfect है, everything happens for reason, मेरा तो यही रहता था कि everything happens for reason, तो True. पढ़ Even लो, yeah, पढ़ I लो, totally agree हाँ, with you on this. तो ये बहुत अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाद हमें उस टाइम समझ में नहीं आता, नहीं आता, बाद में ये भी है कि हाँ उस टाइम समझ नहीं आता, बाद शायद में कुछ सीखना होगा, थोड़ा और मेहनत करनी एग्जैक्टली। सीखनी होगी। और आई ऑलवेज मतलब कि है, मतलब ये प्रिपरेशन फेज इज जस्ट लाइक कि हाँ इट मेक यू वेरी स्ट्रॉन्गर, इट मेक यू वेरी काम, इट मेक यू वेरी पेशेंट कि मतलब यू एवरी टाइम, एंड ऐसा नहीं है कि लाइफ इज जस्ट लाइक कि मतलब वेरी स्मूथ, नहीं, हर्डल्स विल कम, इट वाज वन ऑफ द हर्डल, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक कि पीजी विल बी वेरी स्मूथ दोस 3 years, उसके बाद भी नहीं, तो हर्डल्स विल डेफिनेटली कम, so it makes you very strong. These 3 months after which Kavya left, matlab for AIMS, and I was at home, so these were very difficult for me, but at the same time I realized कि हाँ these have made me a very strong person as an individual, which Kavya has missed. So इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि हाँ थोड़ा अभी के लिए नहीं लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ही क्यों हुआ या मेरे साथ ही क्यों, लेकिन in the long run I'll definitely realize कि हाँ it has made me a stronger person as a, ट्रू, आई थिंक ऑल जैसे आपने बोला, सब कुछ एक कारण से ही होता है, एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना? तो एनी इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कुछ और, वैसे तो आपने इतना कुछ शेयर किया है, बहुत अच्छी इंसाइट्स दी हैं हमें, बट एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू टेल योर जूनियर्स, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें जो मतलब जैसे ये आपने बहुत, दिस इंटरव्यू हैज गॉट अ लॉट ऑफ पर्सनल टच, ये सारी चीजें यूजुअली रूटीनली मतलब कोई बात, आई मीन कम ही होती है इन चीजों पर बात, बट इसी तरह से कुछ और बोलना चाहोगे जो अपने फ्रेंड्स जूनियर्स को, कुछ भी अपनी तरफ से? मतलब बस यही है कि अब यूजी टाइम में पढ़ो, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ना है, इट इज नॉट लाइक कि बस प्रॉफ पास करने हैं हो जाएगा, प्रॉफ में सब पास हो जाते हैं, और इट इज नॉट लाइक कि प्रॉफ ही पास करने हैं एंड में, मतलब यू आर डेस्टिन्ड टू बी अ वेरी गुड क्लिनिशियन, तो जब करना ही वो है तो ये है, इसके बाद फिर जब क्लिनिक्स वाले ईयर्स आते हैं, जब फाइनल ईयर है, उसमें बहुत लोग मतलब मैंने तो बहुत लोगों को देखा कि दे बंक वार्ड्स, ओपीडीज, तो ऐसे क्लिनिक्स अटेंड नहीं करते, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू, मतलब मेरा तो था फाइनल ईयर में, आई नेवर यूज टू रीड दोस क्लिनिकल वाली बुक्स कि जिसमें एग्जामिनेशन लिखा होता है, मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, नेवर, आई हचिंसन ऑलवेज, एक्सेट्रा। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा तो पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल बस उन्हीं के बेसिस पे हम एग्जाम दे के आए, नहीं, आई ऑलवेज यूज टू बी इन द वार्ड्स टिल 9 o'clock इन द नाइट, टिल मतलब केस प्रेजेंटेशन टू एसआर, so वो सब होता था, मतलब पीडियाट्रिक्स इज दैट वेल, मतलब मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि आई ऑलवेज, कलावती सरन इज मतलब इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि क्योंकि उसमें जैसे हमें पीडियाट्रिक्स पढ़ाई और जैसे सिखाया वार्ड में कैसे देखना है बच्चों को, कैसे देखना है, कैसे पेशेंट, इंपॉर्टेंटली पीडियाट्रिक्स में तो ये भी है कि बात कैसे करनी है, पेरेंट्स को कैसे डील करना है, मतलब मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर ब्रांच की, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, तो ये सब, तो वो सब तभी आती है, ये सब चीजें जब आप वार्ड्स में रहते हो, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लिनिक्स वाले ईयर्स में सिर्फ क्लिनिक्स छोड़ के बाकी सब किया, नहीं, तो ओपीडीज अटेंड करनी है आपको, आपको पता चलेगा पेशेंट कैसे बात करता है, पेशेंट कैसे बोलता है, अब पेशेंट तो डायरेक्टली, तो अब हर पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, हर पेशेंट अलग सिम्टम्स के साथ आएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो आप जो उसमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, जो आप पेशेंट में देखते हो और जो आप बुक्स में पढ़ते हो, तो वो चीज आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल होगी, तो ये तो वार्ड अटेंड करने, केसेस लेने हैं, केसेस प्रेजेंट करने हैं,
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केसेस पूरे साल नहीं प्रेजेंट करते, एंड में जिस दिन उनका फाइनल सेंटअप या प्रॉफ होता है उसमें बस वो केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड देन दे आर लाइक कि नहीं हो रहा है, कैसे करे, डर लग रहा है केस प्रेजेंट करने में। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो वर्ड साथ साथ बहुत अच्छे से करना है। अब इसके साथ साथ फिर मैंने बता ही दिया कि अब हमेशा एक चीज प्री प्लान्ड होनी चाहिए एग्जाम से पहले। ये मैंने नहीं बताया शायद कि कहाँ से, अब ऐसा भी है कि जैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट रिवीजन में उन्होंने ये चीज यहाँ से पढ़ी है, सेकेंड रिवीजन में दे स्विच इट ओवर वो कहीं और से वो टॉपिक पढ़ लेते हैं कुछ ऐसा। लेकिन नहीं, एग्जाम से पहले तो फिक्स होना चाहिए कि यहाँ से पढ़ा है तो रिवाइज भी तो करना है, तो इसी से बिल्कुल, करना है, इसी से पिक्चर करना मेमोरी ऐसी है। बनती है। एग्जैक्टली, हाँ, आई थिंक पिक्चर सब मेमोरी, कुछ एक ही जगह एग्जैक्टली। पे डालना हाँ, चाहिए ना, मतलब एग्जैक्टली, मतलब आई आपने। ऑलवेज यूज टू, आई स्टिल रिमेम्बर कि देयर आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स व्हिच यू यूज, मतलब कि बायोकेम में भी बहुत सारे अमीनो एसिड डिसऑर्डर्स वो सब होते थे, और पीडियाट्रिक्स में भी होते थे। सो मतलब ऑल दीज थिंग्स वर इन माय बायोकेम नोटबुक ओनली, पीडियाट्रिक्स में नहीं पढ़ा, क्योंकि वो एट द एंड आपको पढ़ना है, वो आप चाहे कहीं से ही पढ़ो, लेकिन आपके पास जो जितनी इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए, चाहे वो आपके बायोकेम की नोटबुक के अंदर हो या फिर पीडियाट्रिक्स की नोटबुक के अंदर हो, लेकिन सब होना नोटबुक में चाहिए। अब और नोट्स, अब ये बात भी है कि नोट्स खुद की हैंड राइटिंग में होनी चाहिए हमेशा। ट्रू। जैसे बहुत बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी फोटोस्टैट या प्रिंटेड नोट्स या ये सब, मेरे से तो नहीं होता है कि खुद की हैंड राइटिंग में जब आप होते हो तो नेक्स्ट ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू स्टिल मतलब रिक्रिएट दोज, वो पेजेस आपको पता होता है आई कि अग्री यहाँ ये टोटली। लिखा है, यहाँ ये लिखा था तो इसका यही आंसर है। आपको चाहे एंड में आप इतना रिवाइज नहीं करके जाओ, लेकिन ये सच में याद रहता है कि आई यहाँ अग्री, लिखा था तो इसका यही आंसर है। तो ऐसा एब्सोल्युटली। तो खुद की हैंड राइटिंग से लिखना है, और उन्हीं उन्हीं वहीं से बार बार रिवाइज करना है। अब आज इस फर्स्ट रिवीजन में आपने कहीं से रिवाइज किया, सेकेंड रिवीजन में पता नहीं क्यों आपने चेंज किया, उसके बाद फिर क्या आप उसको एग्जाम में आपको याद रहेगा? नहीं, कुछ नहीं याद नहीं रहेगा, रहेगा कि ऐसे लगेगा कि पहली बार पढ़ा ही ही पढ़ रहे कहीं हो। से पढ़ रहे। एग्जैक्टली, एग्जाम, क्योंकि आप जब उसको ऑब्वियसली उसको आप पहली बार ही पढ़ रहे हो उस जगह से, तो आपको नहीं पता चलेगा, तो उसको वही चीज आपको बार बार वही करनी है कि वहीं से, बस यही। I totally agree with this. Even I have been that kind of a student only कि भाई उसी जगह पे ना, मतलब उसी जगह पे ऐड करो, स्टिक ऑन लगा के अलग अलग कलर से ऐड करो, ताकि सारा सामान एक ही जगह पे, सारा मसाला एग्जैक्टली, एक एक ही ही जगह जगह पे पे। हो, हाँ। एक ही जगह पे। हम्म। Yeah. So I think on that note, I would like to end this interview. And once again, thanks a lot, Dr. Kanupriya, for sparing your precious time with us and for giving so many helpful insights for all the aspirants who are going to watch this interview. And I wish you all the very best for all your endeavors in future, professional as well as personal. May God bless you immensely, and all the very best. All the very best. Thank you so much.